Students, today we will study the new chapter, second chapter of HSC Physics, that is mechanical properties of fluids. So we will see the definition of fluids. Fluid means what? A substance which can flow is called fluids. It means liquids and gases are fluids, they both can flow. But in this chapter we will mainly discuss about liquids, because gases के बारे में we will discuss in thermodynamics. So in this chapter we will mainly concentrate on liquids, and now we will see, and that liquid should be an ideal liquid. ठीक है बच्चों, जो लिक्विड होना चाहिए दैट शुड बी एन आइडियल लिक्विड, और जो आइडियल लिक्विड होती है उनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इट इज इनकम्प्रेसिबल. व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल मतलब you cannot compress the fluid or liquid, because mainly we are discussing about the liquid. So the fluid should be incompressible. incompressible का मतलब होता है कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो. ठीक है, जब वो कंप्रेस नहीं होगा तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स होगा. वॉल्यूम फिक्स होगा तो इसका मास फिक्स होगा, एंड मास एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड, देयरफॉर डेंसिटी इज फिक्स्ड. मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट, बिकॉज डेंसिटी इज व्हाट? mass upon volume. Mass constant, volume constant, therefore density will be constant. Okay, the second point is its flow is irrotational. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए. व्हाइल फ्लोइंग इट शुड बी इरोटेशनल, वो घूमना नहीं चाहिए. ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स फ्लो इज स्मूथ. उसका फ्लो कैसा है? स्मूथ है. और वी कैन शो दैट there are no turbulences. ठीक है, there are no turbulences in the flow. in the flow ये भी आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, so flow is irrotational. इसका मतलब है कि फ्लो कैसा है? स्मूथ है, एंड मीन्स there are no turbulences in the flow. The next is it is non viscous. non viscous का मतलब क्या होता है कि सपोज वी हैव टेकन एनी फ्लूइड, तो फ्लूइड में बहुत सारे लेयर्स होते हैं. ठीक है, सो उन लेयर्स का आपस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो. ठीक है, और नेक्स्ट इज इट्स फ्लो इज स्टेडी. फ्लो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए. स्टेडी मीन्स इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इन टाइम शुड बी कांस्टेंट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके. Students, now we will see that properties of fluids. Okay, so they do not oppose deformation. It means what? They get deformed permanently. वो जो भी deformation उनमें होता है, ठीक है, जैसे liquid है, so उसमें जो molecules होते हैं they are far apart. Atoms और molecules they are far apart. So जब molecules and atoms दूर होते हैं, so we can change the shape of that object. Okay, so दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. इसलिए आप देखेंगे लिक्विड एंड गैसेस का शेप बदलते रहता है. ठीक है, सो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन एंड दे गेट डिफॉर्म परमानेंटली. वो डिफॉर्म हो जाते हैं. सेकेंड क्या है? सिंस दे आर फ्लूइड सो दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. थर्ड वन इज व्हाट? दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इन. सो जिस भी कंटेनर में हम लोग रखेंगे, because they do not oppose deformation, इसकी वजह से they will take the shape of that container. तो इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी भी आती है. ठीक है, so they have ability to take shape of the container. ठीक है, these are the important points. So next topic is fluids at rest. तो in this chapter we will study fluids at rest, fluids in motion, and the third topic will be surface tension and viscosity. Okay, so fluids at rest. Rest means what? Static. Rest means static. Okay, and fluid generally we are discussing here about the water. तो water को hydro बोलते हैं हम लोग. ठीक है, hydra is the water. So here the branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is known as the hydrostatics. Hydrostatics. So the branch of physics which deals with the properties of fluid at rest is called hydrostatics. Now we will see the pressure. Okay, so pressure क्या होता है? Normally we say that pressure is what? Force acting normally on a unit area. तो force normally act होना चाहिए, perpendicular होना चाहिए on a
यूनिट एरिया पे, सो दैट इज कॉल्ड प्रेशर. ओके, सो हियर द डेफिनेशन इज द नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स exerted by the fluid. Okay, here the pressure is exerted by fluids. Okay, so the normal force exerted by fluid at rest. Okay, so यहाँ पे हम लोग देखेंगे fluid rest पे है. fluid it is not in a motion. suppose एक beaker है, beaker के अंदर fluid भरा हुआ है. Okay, and inside the fluid at any point, उस fluid के अंदर किसी भी point पर we need to find the pressure. Okay, which is exerted by the fluid and the fluid is at a rest. fluid जो है वो क्या है बच्चों, रेस्ट पर है. so the normal force exerted by the fluid at rest per unit, क्योंकि देखना है कि उस fluid के अंदर कोई एक पॉइंट हम लोगों ने लिया है, उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट का जो यूनिट एरिया है उस पर फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ठीक है, सो द डेफिनेशन इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट per unit surface area of contact, ठीक, is called the pressure. and we know that pressure is what. अब ये फोर्स है, फोर्स का मतलब दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स. ओके, सिर्फ फोर्स नहीं, बिकॉज सपोज कभी कभी क्या होता है कि एक सरफेस पे फोर्स ऐसे भी एक्ट कर रहा है. ओके, सो दिस इज द सरफेस वी हैव और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज द यूनिट एरिया. यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है बट इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल. फोर्स कैसा है, इट इज नॉट नॉर्मल, फोर्स नॉर्मल नहीं है. सो ये फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो व्हाट विल वी डू, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल. नाउ वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स ओके इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्या देखेंगे, ये रिजॉल्व हो जाएगा. ओके, ऐसे. सो इसके सपोज ये है, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद द नॉर्मल, और जो फोर्स है इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द नॉर्मल. ओके, सो ये आपका बेस हो जाएगा इस फोर्स के साथ. सो दिस विल बिकम एफ कॉस थीटा, करेक्ट, एंड दिस विल बिकम एफ साइन थीटा. एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा. सो इट मीन्स व्हाट, ये जो फोर्स है ये नॉर्मल हो गया. एफ कॉस थीटा, जो ये कॉम्पोनेंट जो है विच इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ एफ. ठीक है, फोर्स का एफ कॉस थीटा एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट है. दिस वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या हो गया, this is normal, so we'll take f cos theta. Okay, now this is the force, okay, perpendicular force which is acting on this unit area. Okay, so now we will see unit. तो unit जब देखेंगे तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट इज न्यूटन. ओके, एरिया का ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर. ओके, इट मीन्स प्रेशर SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर पास्कल बोल सकते हैं. ठीक है, ब्रैकेट में PA. सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वी कैन से इट एज अ पास्कल. ओके, ये हो गया. नाउ वी विल सी दैट अबाउट प्रेशर. ओके, इसका डायमेंशन भी होता है. ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क के लिए डायमेंशन भी पूछते हैं. LMT फॉर्मेट में होता है LMT. ठीक, so this is its dimension L-1 M1 T-2. डायमेंशन कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा दूंगा बाद में. ठीक है, नाउ वी विल सी द प्रेशर. तो प्रेशर जो है वो कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है. दो प्रेशर इज मेड अप ऑफ फोर्स एंड एरिया. फोर्स भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, बट प्रेशर क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है. प्रेशर को टेंसर भी बोलते हैं, बट आपके सिलेबस में स्केलर है तो आप स्केलर क्वांटिटी समझिए, टेंसर की समझने की जरूरत नहीं है. नाउ हम लोग देखेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. तो पास या फिर बोल सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं. ओके, या फिर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं बार में, 1 बार, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल बोलो या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो. ठीक है, so 1 bar is approximately equal to 1 atmospheric pressure and that is equal to
देखो 1 का मतलब दिस इज़ 1.013, तो लें और नहीं भी लें तो भी कोई मतलब नहीं है। 10⁵ पास्कल और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक को रिप्रेजेंट करते हैं 760 mm ऑफ मर्क्यूरी Hg, और फिर या फिर कर सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, ये भी कर सकते हैं। या फिर टॉर भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, 760 टॉर, ये जो आपने देखा है ना 760 mm ऑफ Hg या फिर 760 टॉर, ठीक। सो ये सब प्रेशर का यूनिट है। आपने देखा प्रेशर क्या होता है, दिस इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स exerting on a unit area, so that is called pressure। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन क्या होता है L-1 m1 T-2। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने देखा, ठीक है, 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक एंड टॉर। Now we will see one important property, okay, this is not given in your textbook, okay। So जो pressure होता है which is exerted by the fluid, okay, that is isotropic property, ठीक है। What is isotropic property? That pressure it acts at a point, not in direction, ठीक है। बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर वी हैव अ फ्लूइड, ठीक है, वी हैव टेकन दिस पॉइंट, एक पॉइंट P ले लिया, सॉरी दिस इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट, दिस इज पॉइंट X और एनी, ओके। सो एट दिस पॉइंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ओके। सो क्या होगा कि इस पॉइंट पे फ्लूइड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो दिस इज अ यूनिट एरिया, सो इस डायरेक्शन में PA, ठीक है। सो देखो वी नो दैट प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, so therefore force is what, pressure into area। तो force equal to क्या हो जाएगा, pressure into area। so now at this point, so क्या होगा, at this point pressure exerted by the fluid, okay। so इस point पे क्या होगा, fluid pressure exert करेगा, ठीक है। it means what, and pressure into area, since we have pressure at this point as well as this is a unit area, so हाँ, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि प्रेशर सिर्फ एक पॉइंट पे एक्ट होता है, ठीक है। दिस इज आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट प्रेशर इज, इट इज एक्टेड बाय द फ्लूइड, ओके। नाउ सो इस पॉइंट पे फोर्स, नाउ अब प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है उस पॉइंट पे, एरिया है वो यूनिट एरिया है। सो प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, फोर्स। इसका मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में PA 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 PA, okay, so force will be same in all डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स के बाद क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास एक डायरेक्शन भी है। सो बट प्रेशर जो होगा, प्रेशर सिर्फ एक पॉइंट पे एक्ट करता है, बट जब प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो दैट विल बिकम फोर्स, तो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा उस पॉइंट से, है ना, हर एक डायरेक्शन में फोर्स होगा। सो फोर्स विल बी, ठीक है, सेम डायरेक्शन, फोर्स विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। सो उसके पास डायरेक्शन है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये है इसका मतलब, आइसोट्रॉपिक का मतलब। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ वेसल, okay, we will take a vessel which is filled with some fluid, this is filled with some fluid, okay। so now डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, okay, wait। Okay students, now we will see that pressure due to a liquid column। so we will take a, okay, so हम लोग लिखेंगे क्या कि a vessel is filled with, ठीक है, एक vessel लिया which is filled with a liquid having density rho, okay।
So a vessel, this we have taken a vessel which is filled with a liquid having density rho, and consider an imaginary cylinder in the liquid. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करना है, ठीक है, अज्यूम करना है, ठीक है. ओके, देखो ये सिलेंडर जो है दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दैट लिक्विड ओनली. ओके, बट वी हैव अज्यूम्ड अ इमेजिनरी सिलेंडर इन द लिक्विड. ठीक है, कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर इन द लिक्विड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए. ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ए है. ओके स्टूडेंट्स, समझे आपको. सो हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए. नाउ व्हेन यू विल सी दैट दिस इज द इमेजिनरी सिलेंडर, तो ये देखा जाए एक तरह का कॉलम बन रहा है. ओके, लिक्विड कॉलम बन रहा है. क्या बन रहा है, लिक्विड कॉलम बन रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस लिक्विड कॉलम. ओके ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ liquid column will exert a force on the bottom of imaginary cylinder. Okay, देखो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, ये जो लिक्विड कॉलम बन रहा है, ठीक है, सो उसका अपना खुद का वेट होगा उस लिक्विड कॉलम का. ठीक है, सो दिस लिक्विड कॉलम विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉटम ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर. तो देखो वो कैसा कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो उसका वेट है वही उसका फोर्स होगा. सो दिस लिक्विड कॉलम विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर विच इज इट्स वेट, जो कि क्या है, इसका खुद का वेट है, W = mg. ये फोर्स वो एक्सर्ट करेगा ऑन द बॉटम ऑफ, ये जो लिक्विड कॉलम होगा ये, ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड होगा सिलेंडर के अंदर, वो क्या करेगा, क्योंकि वेट नीचे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लिख सकते हो, विच इज इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक, ये हो गया, समझ में आ रहा है आपको. सो इसका जो यहाँ पे लिक्विड होगा इस कॉलम में, दैट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट्स बॉटम, और वो जो फोर्स होगा दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड एंड विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है. यस, नाउ ये तो हो गया फोर्स की बात. ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं प्रेशर की बात. नाउ प्रेशर exerted by liquid column ना on the bottom of cylinder. ठीक, बहुत सिंपल है. देखो बच्चों, सबसे पहले क्या किया आपने, फोर्स निकाला. ठीक है, क्योंकि आपके पास जब फोर्स होगा तभी तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं. सो लिक्विड कॉलम विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, और वो फोर्स क्या होगा, उसका खुद का वेट होगा, दैट इज W = m/g विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ अगर फोर्स आया तो प्रेशर भी आएगा. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है. करेक्ट, फोर्स क्या है यहाँ पर, mg है, क्योंकि लिक्विड कॉलम का जो वेट है वही तो फोर्स है. सो क्या है, mg/a है. ठीक है, अच्छा इतना पार्ट लिख लिया आपने. ओके, नाउ वी विल सी दैट प्रेशर इज व्हाट, mg/a, एंड वी नो दैट कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम. तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, मास है, सो मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, समझ में आ रहा है. सो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. करेक्ट, सो डेंसिटी रो है. अच्छा, अब वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं. वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट.
लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाता है, एरिया. सो एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट. अच्छा, वन मोर थिंग कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप मेंशन कर सकते हो कि लेट h बी हाइट ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर. ठीक है, h जो है वो क्या है, हाइट ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर है. क्या देखा आपने, मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम आपको मैंने बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, वेयर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, सो एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम. सो एरिया इंटू हाइट वी हैव टेकन. सो मास के प्लेस पे देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, एट प्लेस ऑफ मास वी विल राइट रो ए एच, रो ए एच इंटू जी अपॉन ए. ए गेट कैंसिल, सो देयरफॉर प्रेशर मिल गया आपको क्या, रो एच जी. ओके, ये क्या है, P इज व्हाट, हियर P इज प्रेशर exerted by liquid column और fluid. ठीक है, क्योंकि ओके हियर द P is what, P is the pressure exerted by the liquid column और the fluid. ये liquid column का ये pressure है. ओके, we have seen that the pressure exerted by liquid or fluid, okay, at rest is h rho g. So here we can see h is height, rho is the density of fluid and g is the acceleration due to gravity. So यहाँ पर एरिया तो है नहीं, so आप बोल सकते हो कि प्रेशर exerted by a fluid at rest, it does not depend upon area of cylinder, area of cross section of cylinder बोल सकते हैं, area of cylinder. and also जो प्रेशर होता है, प्रेशर exerted by fluid at rest is independent of size and shape of container, size and shape of कंटेनर. ठीक है, सो देखो ये क्या है, मैंने जो लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, कि कैसे कि प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है साइज एंड शेप पर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर. ठीक है, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है वो आपने देख लिया, दैट इज एच रो जी. स्टूडेंट्स, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है वो आपने देखा, दैट इज एच रो जी. नाउ वी विल सी दैट कि प्रेशर वेरिएशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे ऑन अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल एट एनी पॉइंट व्हाट विल बी द प्रेशर. ठीक है, एंड वर्टिकली व्हेन यू विल मूव अपवर्ड डाउनवर्ड इन अ फ्लूइड वर्टिकली, और फ्लूइड रेस्ट पे है, उस समय प्रेशर क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है. ठीक है, सो दैट वी विल सी. atmospheric pressure, what is atmospheric pressure? So we will see that ki atmosphere is mainly made up of a fluid called air. ठीक है, so atmosphere जो है it is mainly made up of a fluid called air. Okay, so it exerts, and this air it exerts a downward force due to its weight. ठीक है, सो ये क्या करता है, जो एयर होता है इट exerts a downward force due to its weight. So the pressure exerted by air, the pressure exerted by this force is
known as atmospheric pressure। ठीक, अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। ठीक, ओके। सो आपने देखा कि जो एटमॉस्फेयर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड एयर। सो एयर हैज़ सम वेट, सो बिकॉज ऑफ दैट वेट इट विल एग्जर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, द प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड द प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस फोर्स इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerted ऑन सी लेवल। ठीक है, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ सी लेवल इज नोन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक pressure। Okay, and we know that as we will go higher and higher, the density of air will decrease, so pressure will decrease, and beyond 8 kilometer pressure becomes negligible। ठीक, अब 8 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो प्रेशर इट बिकम्स नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि 8 किलोमीटर तक फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, अबव द सी लेवल अप टू 8 किलोमीटर वी हैव एयर कॉलम। ठीक है, सो वो एयर कॉलम क्या कर रहा है, सी लेवल पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट अबव सी लेवल। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्रेजेंट, ठीक है, अबव सी लेवल इज बिकॉज ऑफ 8 किलोमीटर लॉन्ग एयर कॉलम। ठीक है, सो जो सी लेवल पे जो, क्योंकि देखो सी लेवल्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड बियॉन्ड 8 किलोमीटर वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सी लेवल से 8 किलोमीटर तक का जो एयर कॉलम बनेगा, तो वो जो एयर कॉलम एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा सी लेवल पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट अबव सी लेवल, सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ 8 किलोमीटर लॉन्ग एयर कॉलम। वो किसकी वजह से होता है, 8 किलोमीटर लॉन्ग एयर कॉलम की वजह से होता है। एंड द रीजन वेयर gas pressure is less called vacuum। ठीक, परफेक्ट वैक्यूम नहीं, बस वैक्यूम बोल रहा हूँ मैं, कि वो जगह जहाँ पर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, लेस मतलब किससे लेस, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called वैक्यूम। और कभी कभी क्या होता है कि परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम मीन्स नो मैटर, नो मॉलिक्यूल्स। ठीक, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो हम लोग देखेंगे कि प्रेशर में क्या चेंजेस हो रहा है ऑन अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे आने जाने पर। एंड देखो हॉरिजॉन्टल है तो एक सेम हॉरिजॉन्टल होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पे है ना, एक सेम हॉरिजॉन्टल पे डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब ऑन सेम हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ठीक है, सो यहाँ पे देखना है कि ये दिस इज़ फर्स्ट फॉर वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। सो वी हैव अगेन कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ वाटर। ठीक है, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया
ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट्स क्या है, ए है. ओके, नाउ वी विल सी दैट फोर्स F1 इज एक्टिंग ओके बाय द वाटर प्रेजेंट बिसाइड्स, यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है, एंड F2 इज द फोर्स एक्टेड बाय द वाटर प्रेजेंट दिस साइड. ओके, नाउ वी विल सी दैट कि ये जो लिक्विड है, नाउ वाटर इज एट रेस्ट या फिर फ्लूइड इज एट रेस्ट. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, इट मीन्स व्हाट, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा सो नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. ठीक है, अभी आप सोचेंगे एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया. ठीक है, एक्सेलरेशन बिल्कुल आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि F1 इज अ फोर्स, इट इज एक्टेड बाय वाटर ऑन दिस सरफेस एंड F2 इज द फोर्स एक्टेड ऑन दिस सरफेस. दो फोर्स हैं F1 एंड F2. ठीक है, बट ये जो फ्लूइड है वो कैसा है, वो रेस्ट पे है. फ्लूइड रेस्ट पे होने का मतलब है कि जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं दे आर कैंसिलिंग ईच अदर. दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हेन फोर्स इज 0 एक्सेलरेशन विल बी 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. जब यहाँ पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो, क्योंकि यहाँ पे मोशन ही नहीं है ना, आप देख सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन यहाँ पे, क्योंकि वो एट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो नो एक्सेलरेशन है. नो एक्सेलरेशन है मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे. सो देयरफॉर F1 इक्वल टू F2. ओके, सो प्रेशर एट ऑन दिस सरफेस विल बी P1 एंड प्रेशर ऑन दिस सरफेस विल बी P2. सो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, P1A, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है A, एंड F2 क्या हो जाएगा, P2A. तो A गेट कैंसिल, तो P1 इक्वल टू P2. सो P, आपने देखा प्रेशर रिमेन्स द सेम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टली प्रेशर रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड. ठीक, तो क्या देखा आपने कि हॉरिजॉन्टली प्रेशर रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट इन नॉन एक्सेलरेटेड fluid. Okay, now we will see variation of pressure vertically. So already we have the formula. Suppose यहाँ पे प्रेशर क्या ऐड कर रहा है, P नॉट. P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P क्या था बॉटम पे. हम लोग ने एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर का डेरिवेशन किया था, तो डिराइव किया था. सो P इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G. ठीक है, दिस वॉज द फॉर्मूला. क्योंकि यहाँ का जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एज वेल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस. ठीक है, यहाँ का जो टोटल प्रेशर होगा, ऑब्वियसली नीचे है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो दिस प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सरफेस. ओके, सो P इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G. अब मैंने आपको एक बताया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर. ओके, सपोज मैंने एक कंटेनर बना लिया, अभी आपको मैं समझा देता हूँ. यहाँ पे हाइट जो है h ही है. ठीक है, मैंने एक कंटेनर बनाया, इसका शेप थोड़ा सा कैसे भी बना सकता हूँ मैं. ठीक, ये रहा, ये मैंने कंटेनर बनाया. ठीक, कंटेनर बना लिया. नाउ यहाँ पे देखना है कि देखो, नाउ यू कैन सी द शेप ऑफ दैट कंटेनर. अगेन वी विल इमेजिन 3 सिलेंडर्स ओवर हियर. ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर ऐसा हो गया. ठीक, दूसरा सिलेंडर ऐसा बना लेते हैं, तीसरा ऐसा बना लेते हैं. 3 सिलेंडर हो गया, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल. ठीक, ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट क्या h है, और यहाँ पे 1 2 3 सिलेंडर लिया, तीनों h हाइट में ही फिट हो जा रहे हैं. ठीक, वहाँ पे देखो, सपोज ये वाला सिलेंडर है, उसकी हाइट h1 है. ठीक, ये वाले सिलेंडर की हाइट h2 है. ओके, ये जो यहाँ पर
प्रेशर ऐड करेगा दैट इज, क्योंकि टॉप सबसे ऊपर है, वहाँ पे जो प्रेशर ऐड करेगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सपोज P1 ऐड कर रहा है यहाँ पर, और सिंस ये जो सिलेंडर है सेम हॉरिजॉन्टल पे है तो यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे भी P1 हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है, सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। P1 क्या हो गया, क्योंकि नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, सो वी विल गेट फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रेशर। तो P1 यहाँ पर है तो ये P1 है क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर हॉरिजॉन्टल है, इस एंड पे P1 है तो इस एंड पे भी P1 होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, अच्छा और नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सो यहाँ से P1 है तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। चलो इतने पे आ गए, ठीक, इतना पार्ट समझा। अच्छा, सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, P1 विल बी वॉट, P1 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ पे आओगे तो P1 विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट सिलेंडर के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। P1 क्या होता है, P0 H1 रो जी। ठीक है, H1 इसलिए बिकॉज सिलेंडर की हाइट क्या है, H1 है। ठीक है, हम लोग H1 रो जी लेते हैं, तो H रो जी लेते हैं तो H1 रो जी। गिव इट इक्वेशन 1। तो ये आपको बच्चों मिल गया P1। तो यहाँ P1 क्या मिला आपको, P0 H1 रो जी, तो ये भी P1 वही होगा क्योंकि सेम है, P1 P1 है। ओके, नाउ अब यहाँ से आप और नीचे जा रहे हो तो प्रेशर विल इंक्रीज, सो P2 विल बी वॉट, P2 विल बी वॉट, P2 विल बी, देखो बच्चों जब आपने P1 निकाला, P1 निकालने के लिए आपने क्या किया, P1 इक्वल टू P0 प्लस H1 रो जी। ये प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ये प्रेशर प्लस जो हाइट है इंटू रो इंटू जी। अब यहाँ पे आ जाओ, P2 निकालना है तो ये प्रेशर P1 प्लस हाइट क्या H2 रो जी, करेक्ट। तो P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस H2 रो जी। अब बट अपने को क्या पता कि P1 क्या है, ये पार्ट है, सो P2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, P1 के प्लेस पे वी विल राइट P0 प्लस H1 रो जी प्लस H2 रो जी। ठीक है, इसके प्लेस पे ये वाला लिख लेते हैं। ओके, सो नाउ दिख रहा है आपको, यस। अब व्हाट इज कॉमन, P2 लिख लिया, P0 प्लस रोजी कॉमन है तो रोजी वी विल टेक आउट, यहाँ हो गया H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सो आपने देखा कि P2 इक्वल टू P0 रोजी H1 प्लस H2, तो लिख लो यहाँ पर। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सो देयरफॉर P2 इक्वल टू P0 प्लस रोजी बाहर है, H1 प्लस H2 क्या आप देख लो, खुद ही देख सकते हो, H1 प्लस H2 दोनों मिला के टोटल हाइट कितनी है, H। सो क्या मिल गया आपको, P2 इक्वल टू P0 रो जी H। ठीक है, आपको सेम प्रेशर मिला, दिख रहा है, जो इस केस में था वही यहाँ पे भी है, करेक्ट। सो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि देखो टोटल हाइट क्या मिलता है, H। आप मत सोचो P1 P2 है, इससे मतलब नहीं होता है, मेन ये हुआ है H। इसकी भी हाइट कितनी है H, इसकी भी हाइट कितनी है H, सो प्रेशर विल रिमेन सेम, क्योंकि ये भी P0 है, ये भी P0 है। देखो वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ देखो, यहाँ पे जो P पे मिल रहा था यहाँ पर वही P2 की भी हो रही है, सेम वैल्यूज़ है। सो P एंड P2 विल बी इक्वल। तो शेप कुछ भी हो, प्रेशर विल रिमेन द सेम। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। ओके, ये एग्जाम्पल आपके नीट एंड जेई के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। सो हियर वी विल सी 3 कंटेनर कंटेनिंग सेम फ्लूइड, फ्लूइड सेम है, सेम फ्लूइड का मतलब होता है डेंसिटी विल बी सेम। ओके, एंड दे आर हैविंग सेम हाइट, सबकी हाइट भी सेम है, जो फ्लूइड का लेवल है दैट इज H, सब में H H H है। नाउ एट दिस पॉइंट एट द बेस, हियर ऑल्सो एट द बेस, हियर ऑल्सो एट द बेस, सो प्रेशर एट दिस पॉइंट इज PA, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज PB, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज PC। फ्लूइड सेम है, हाइट भी सेम है, कंटेनर का शेप अलग अलग है। ठीक है, सो आप मुझे बताओ सोच के कि कौन सा कंडीशन या कौन सा केस ट्रू है। सो फर्स्ट वन में PA प्रेशर एट पॉइंट A विल इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट P एंड दैट इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट C। ठीक है, सेकंड में है तीनों प्रेशर सेम है, थर्ड में है PB का प्रेशर PA से ज़्यादा है और दैट इज़ PC से ग्रेटर। सोच लो, बताओ मुझे। सो देखो स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ, फ्लूइड सेम है, हाइट सेम है। सो मैंने बताया था कि प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ
कंटेनर, ठीक है। तो प्रेशर जब इंडिपेंडेंट है शेप ऑफ कंटेनर, सो सिंपल सी चीज़ है, तीनों में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हाइट तो सेम ही है सबको, क्योंकि प्रेशर रो एच जी, सो यहाँ पे तीनों में प्रेशर सेम होगा, क्योंकि प्रेशर शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेकेंड विल बी द ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद एक और देता हूँ मैं आपको। द सेकेंड एग्जाम्पल इज 3 vessels having equal base area. We have 3 vessels A, B, C and they are filled with equal volume of same fluid. जो भी fluid है तीनों में क्या है, सेम है। मैंने fluid बनाया नहीं है बिकॉज अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों। सो बेस एरिया सेम है, फिल्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड, मतलब अगर आपने 1 लीटर इसमें डाला तो 1 लीटर इसमें, 1 लीटर इसमें, और आपको पता है फ्लूइड जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। सो अब कंडीशन बताना है कि प्रेशर किस केस में, देखो क्या कंडीशन होगा, पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी है कि पी सी ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी बी है, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस। तो आप पहले ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ। हियर सेम फ्लूइड इज देयर, सेम फ्लूइड विथ सेम वॉल्यूम, ठीक, सेम फ्लूइड है, सेम वॉल्यूम है, बेस एरिया इज ऑल्सो सेम, ठीक ठीक। बट शेप देखिए आप, अगर यहाँ पे मैंने 1 लीटर का कोई फ्लूइड लिया है, ठीक है, करेक्ट, सो बेस एरिया सेम है, लेकिन इसका शेप देखिए ऊपर ब्रॉड हो रहा है, ब्रॉड होने का मतलब है एरिया बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 1 लीटर फ्लूइड कम हाइट तक होगा, समझो। यहाँ पे 1 लीटर फ्लूइड यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपवर्ड जाते वक्त वो ब्रॉड हो रहा है, सो उसकी हाइट कम हो जाएगी, दैट 1 लीटर अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल कम अप टू दिस हाइट ओनली, हाइट कम हो गई। और यहाँ पे क्या है, देखो तीनों का बेस सेम है, इसका बेस इस तीनों का बेस सेम है, ठीक है। और यहाँ पे अपवर्ड जाते वक्त नैरो हो रहा है, इसका टॉप कैसे बनते जा रहा है, नैरो बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लिक्विड लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और भी ऊपर तक जाएगा। तो इसका मतलब है आपने देखा कि इस केस में हाइट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सो हियर देयर इज डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल हाइट में डिफरेंस है, तो किसकी वर्टिकल हाइट सबसे ज़्यादा है बच्चों, सी में, सो पी सी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है, पी ए, सबसे कम टी बी। तो कौन सा ऑप्शन है, पी सी पी ए पी बी, सेकेंड वन इज करेक्ट। दिस एग्जाम्पल, ओके, वी हैव ओनली 1 कंटेनर, इसका मतलब है, एंड दिस इज स्टैटिक फ्लूइड, ठीक, ये याद रखना है, स्टैटिक फ्लूइड है एंड सेम फ्लूइड है, एक ही फ्लूइड है, ठीक। सो डेंसिटी भी सेम होगा, ओके। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स बी, ए एंड सी। सो ए जो अबव सरफेस है, लेयर है जो, वहाँ से इसकी हाइट h है, ठीक है। दिस इज बी, यहाँ से वॉल से एट ए हाइट x पे है, एंड यहाँ से दिस वॉल से एट ए डिस्टेंस x पे है, ठीक है, सी। सो मुझे बताओ विच केस विल बी करेक्ट। ओके, सो आपको लगेगा कि ये हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर पी ए विल बी ग्रेटर, आपको लगेगा पी ए विल बी ग्रेटर, ये रहा, एंड पी बी पी सी विल बी इक्वल, तो आपको लगेगा ये है करेक्ट, नहीं ये गलत है, इनकरेक्ट, ओके। वाई, बिकॉज देखो मैंने बताया कि फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब और सेम फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, इसका मतलब आप जो पॉइंट ले रहे हो सेम हॉरिजॉन्टल पे, अगर मैंने बताया कोई भी चीज़ सेम हॉरिजॉन्टल पे होती है, सो प्रेशर विल बी सेम, ठीक। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। वेट सी सही तो है, बट आप सोचोगे सर यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक सम कराता हूँ, बिकॉज होता क्या है अभी समझो, यहाँ पे ये जो सरफेस है वो फ्री है, ठीक है, फ्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे वाटर कॉलम होगा, वहाँ की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर होगा, ठीक है,
वो समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस फ्री नहीं है, यहाँ पे क्या है, वॉल है। ये वॉल क्या प्रोवाइड करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो वॉल है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक। सो ये ऐसे दबा रहे हैं, सोचो समझो, ऐसे दबा रहे हैं लिक्विड को, ये दोनों वॉल ऐसे दबा, यहाँ पे फ्री है सरफेस, यहाँ पे ये दबा रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो विच इज़ एक्टिंग नॉर्मली, जो वाटर पे एक्ट कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो एरिया पे एक्ट कर रहा है, मतलब वो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे भी प्रेशर हो जाए, तो ये दोनों प्रेशर क्या करेंगे, इस प्रेशर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और ये प्रेशर, तीनों प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। सो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को का जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो प्रेशर, ठीक है, बैलेंस कर रहा है। सो इसका मतलब है पी ए पी बी एंड पी सी इक्वल होगा। इसके ऊपर मैं आपको एक सम दूंगा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू